உங்கள் பிள்ளைகள் 10th மற்றும் +2 CBSE ஸ்டேட் போர்டில் படிக்கிறார்களா? அவர்களை அதிக மார்க் வாங்க வைக்க ஈஸி வழி. சாணக்யா இன்டர்நேஷனல் அகாடமி ஆன்லைன் கோச்சிங் சென்டர் for all subjects. Contact 7823910123. Hi, my name is Sakshi and I am student of BHU. We are talking about UP elections, and today we can see that BJP government is coming once again. The BJP has won with lot of majority. So the reason behind this is we are talking about Ram, Ration and Sashan. The public of UP was talking about Ram, Ration and Sashan, and that we have got in past 5 years. We can also see about the law and order which was constantly maintained. The kind of riot which we could see in the past governments, that was highly controlled during this government. We could also see the way the law and order was maintained by CM Yogi. Also, we can see in this election that the way women voters have come out. In 6th and 7th phase, we could see the increase in Muslim voters. Muslim female voters was very high. In the 6th phase, more than males, 10% female were there. And also in the 7th phase, we could see how PM Modi came to Varanasi himself to campaign for these elections, and women voters were in a very high number. So we can see that even the female voters were too much interested in these elections, and they have come out from their house, breaking the walls of their house and coming out to cast their vote, to stand for their rights. We can also see that the issues like love jihad, issues related to their kitchens, related to their security, all these things have been curbed, and the Yogi government has taken very strict actions and steps for that. So I think this phase is also going to be very good and little bit challenging, because this time public of UP is going to have lot more expectations from UP government, Yogi government. So all the best to Yogi government, and let's see what's going to happen next 5 years. Thank you. देखिए, अभी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, इसमें सबसे ज़्यादा यदि किसी का योगदान बताया जाए तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का रहा। क्यों? क्योंकि जो हमारी पूर्ववर्ती में जो पहले 5 साल सरकार रही, जो इसके पहले जो सरकारें रही, उनकी जो योजनाएं रहीं, जो उससे लाभार्थी जिनको लाभ मिला, सबसे ज़्यादा हमें मतदान उन्हीं का मिला। दूसरा विषय कि हम जब किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के नाते से जब इस पर देखते हैं तो हम ये सोच रहे थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश हम हार रहे हैं, ब्रज हम हार रहे हैं, अवध हम हार रहे हैं और पूर्वांचल हमें जिताएगा, लेकिन जो इसका परिणाम रहा जस्ट इसके अपोजिट रहा। तो उसके पीछे हम देखेंगे तो और सबसे ज़्यादा वोटर हमारे साइलेंट थे। लोग सोच रहे होंगे मुसलमानों का वोट नहीं मिला, हमें मुसलमानों का वोट बहुतायत संख्या मिला। मुसलमान जो महिलाएँ उन्होंने हमें बहुतायत संख्या में वोट दिया है, और अग्रिम यह जो अपना कार्यकाल है 5 साल योगी आदित्यनाथ जी का, यह उससे भी उत्कृष्ट होगा, ऐसी हम सब आशा करते हैं। Hello, I am Swatantra Singh. Actually, I belong to Varanasi. So I think BJP won this election, and maybe just because they had done a very good work, especially in Varanasi. Means there are a lot of development in Varanasi and as well as in the whole UP. So I think this is the best and main reason for winning this election for BJP. Thank you. यूपी में योगी शासन का दोबारा आना एक सुशासन का प्रतीक रहा है। योगी ने जिस प्रकार से कोरोना के दौरान गरीबों में राशन वितरित किया, गरीबों में कोविड का टीकाकरण कराया, या जिस प्रकार से सुशासन की उन्होंने बुलडोजर चला करके माफियाओं को ध्वस्त किया है, इसकी बदौलत यूपी में बाबा दोबारा आ रहे हैं। बाबा के दोबारा आने से कई प्रकार के एक्सपेक्टेशंस सरकार से हैं जो बाबा फुलफिल करेंगे। जैसे आप शौचालय ले सकते हैं, आवास ले सकते हैं, राशन दे सकते हैं और प्रशासन ले सकते हैं। रक्षण, पोषण और शिक्षण के आधार पे बाबा दोबारा आ रहे हैं। बाबा का 2.0 एक दमदार कार्यकाल रहेगा, ऐसी आशा के साथ यूपी की जनता ने उनको दोबारा निर्वाचित किया है। अपना जो उत्तर प्रदेश है, इसको संस्कृति की नगरी भी कहा जाता है, जहां एक महंत की उपयोगिता उतनी ही है जितनी योगी आदित्यनाथ जी को भाजपा के लिए है। आज दोबारा से उत्तर प्रदेश में एक सुशासन का राज्य कायम हुआ। महंत, योगी या जो कह लीजिए आप, संस्कृति की पुनः स्थापना करने के लिए एक सन्यासी को वापस से इस बार दोबारा सत्ता मिलेगी। उत्तर प्रदेश की जनता उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं लेकर के आई हुई है। जो काम उन्होंने विगत 5 वर्षों में किया, जो सुशासन का राज उन्होंने उत्तर प्रदेश में कायम किया, जनता की एक्सपेक्टेशंस और उनसे बढ़ गई हैं। जो बुलडोज़र जितनी चली हैं,
इस बार जनता वो भी देखना चाहेगी कि इस बार जो उनका फेज़ 2 है 2.0 जो उन्होंने स्टार्ट किया है वो कैसा जाएगा। और जो ये आतताई है, जो इतना भ्रष्टाचारी और जो बाकी लोग हैं, इनके ऊपर उनका कड़ा रुख जनता को बहुत ही प्रिय है और आगे इनके 2.0 में और इनका विकराल रूप देखने को मिलेगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ का महत्व इस चुनाव में इसलिए है कि अगर हम देखें ध्यान से, अगर चरण वाइज अगर हम देखें तो जो पहले 2 चरण हैं, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्टतः उनके नाम पे चुनाव लड़ा है। जो 2 चरण के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो खैर बैठकें ले रहे थे, लेकिन उस तरह की नरेंद्र मोदी की जो एंट्री हुई है, हम देखेंगे सहारनपुर के बाद जब अवध रीजन आता है तो उन्होंने चुनाव की कमान संभाली है। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश जो सबसे टफेस्ट जगह मानी जा रही थी कि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि किसान आंदोलन का प्रभाव रहेगा, तमाम तरीके जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण जो है बीजेपी के खिलाफ थे, तो वहाँ बीजेपी ने उनको एक तुरुप के इक्के के तौर पर जो है प्रयोग किया। इसलिए किया क्योंकि वो सुशासन और जो कानून व्यवस्था एक मुद्दा जो थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर जो बालिकाओं और महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें जो है बहुत कारगर रही। और इसलिए खासकर पश्चिमी पहले 2 चरणों में योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े लीडर थे। उसके बाद वो नरेंद्र मोदी के जो है, जब नरेंद्र मोदी ने चुनाव की कमान संभाली तो उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा तो वो थे ही, और उन्होंने इस चुनाव को अपने दम और कम से, खासकर कानून व्यवस्था का जो उनका मुद्दा है, स्पष्टता जो है ये पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं का वोट खींचने में सफल रहा है। महिलाओं को ये आभास था कि अगर समाजवादी पार्टी आती है तो 12 से जो 17 की स्थिति थी वो दोहराई जा सकती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि शामली और कई, अगर आप बात करेंगी खासकर जो हिंदू महिलाएं हैं उनसे, या जो लोग समझते हैं कि एक धर्म विशेष के लोग, एक समुदाय विशेष के लोग किस तरह उनको प्रताड़ित किया करते थे, स्कूल नहीं जा पाती थी बच्चियाँ, वो परिस्थिति बदली। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में संकेत गया कि अगर वो लीडर ऐसा है कि जो कानून व्यवस्था के मसले पर, सख्ती के मसले पर, सुशासन के मसले पर किसी प्रकार का समझौता करने वाला नहीं है। दूसरी बात, जो अपेक्षाएं क्या हैं इस नई सरकार से, सबसे बड़ी अपेक्षाएं होंगी कि जो 2 साल में रोजगार एक प्रमुख मुद्दा बना है और वो बहुत लंबे समय से है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि जो कोरोना का काल था उसमें सरकार के हाथ बंधे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें जो है वो केवल पाइपलाइन में रही थी। अब उस पे काम होगा और खासकर कानून व्यवस्था पे मैं फिर कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ को उतनी ही सख्ती और भी ज़्यादा सख्ती बरतनी चाहिए और माफियाओं के घरों को बुलडोजर चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश का जनादेश उन माफियाओं के खिलाफ, उन आपराधिक तत्वों के खिलाफ है और योगी आदित्यनाथ जी उसके सबसे बड़े लीडर इसीलिए बने क्योंकि वो उनके खिलाफ थे। I have voted to BJP this year and I'm looking forward for growth and opportunities in UP elections. And UP BJP government has promised us that they will provide government jobs to everyone, every household, to each member of households. So currently I'm working professional, I'm working as software engineer. So I'm looking forward that in coming time BJP government should provide good opportunities, government jobs, and recently I have seen so many developments in past 5 years in Varanasi also. So I'm looking forward that in coming times, in below 5 or 10 years down the line, the BJP government will provide whatever the people want here, and that's it. नमस्ते, मैं पायल राय और आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की पुनः सरकार बनने पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और इस चुनाव में जैसा कि हमने देखा, योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी भूमिका यह रही कि यह उत्तर प्रदेश में पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री दूसरी बार कंसेक्यूटिवली चुनाव में जीता है और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। जो रैलीज़ इन्होंने की, जो सीट्स ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और जहां पर भाजपा अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, वो इनकी रैलियों की वजह से बहुत अच्छी रही और बहुत सफल रहा। और दूसरा विषय ये कि आगे आने वाले घोषणा पत्रों में, जो उत्तर प्रदेश के घोषणा पत्र में आगे आने वाले जो काम है, उसमें सबसे पहली चीज़ है महिलाओं के लिए कि होली दिवाली जैसे पर्वों पर गैस सिलेंडर मुफ्त देना, उसके बाद वृद्धा पेंशन बढ़ा देना। ऐसी कई सारी तमाम चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश करने जा रही है अपनी दूसरी टर्म में। तो आशा करते हैं कि विश्व पटल पर उत्तर प्रदेश फिर से भारत माँ की जय जय बोलेगा। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जी ने फिर से प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार को स्थापित किया है। इसमें हमने देखा है कि कहीं ना कहीं योगी जी से जो काम अभी अधूरे रह गए थे उसको फिर से हम लोग उसमें कामयाब रखें। और कहीं ना कहीं एक मुद्दा था पूरे चुनाव में एक रोज़गार का, और वास्तव में ये धरातल पे भी कहीं ना कहीं लोगों को गया।
लेकिन हम युवा हैं, हम लोगों ने फिर भी मोदी जी के नेतृत्व वाली योगी जी की सरकार को इसलिए चुना है क्योंकि युवाओं को ये कहीं ना कहीं अपेक्षा है कि योगी सरकार ही एक जिनकी नीयत पे सवाल नहीं किया जा सकता, जहाँ पे नकल नहीं हो सकते, वहाँ पे यदि रोज़गार आएगी तो वो रोज़गार 100% लोगों तक पहुँचेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जब इनकी सरकार बने तो वो पूर्णतः फिर से रोज़गार को कंटिन्यू करें और जहाँ शिक्षा में जहाँ कहीं छूटा हुआ है उसकी पूर्ति करें, जिससे अपने युवा अपने रोज़गार की संकल्पना को साकार करें। As a UPians, I can say that I used to associate UP as a state of Gunda Raj, total Gunda Raj before that, few years back. And after the first term, I've seen the changes that government has brought up, either in the terms of safety, women's safety or empowerment, and the terms of development too. And I really hope that the government continues to work on that sector, and continues to fulfill the desire of the employment of the students and the pluralist culture of this state. So UP government won again. Okay, so I just want to say why it was crucial for BJP to win this election, because everyone was expecting that BJP will eventually win this because they are in power, but it's not so. It was very crucial for BJP to win this election, as we have seen that Mayawati was in the term for one term, Akhilesh was for one term, and Yogi got repeated again. So this was a historical overturn for BJP itself. What I feel is that BJP has the potential to do much more better, and they have done better, and the results are already that we can see. What I expect from this government is that as a student I will obviously first of all state that the employment rate, because just taking a job opportunity for taking the post for 1 lakh student but selecting only a 10 or 20, it's not about that the employment rate is actually improving. We need much more job, and according to the skill, the people need job according to their skill and education. And I also need that the safety for the women should be improved, and the economic and GDP growth should also be included, and our India should be ready that if in near future if any pandemic or any such medical emergency arise, so it should help and we should be ready for it. So thank you.